Namaste Gurukulians, class 12th. How are you beta? I hope you will be fit and fine at your home and you are doing your study along with us by these video lectures. Today I will continue the same chapter. The name of the chapter is Indian Economy on the Eve of Independence. Indian Economy on the eve of independence. In previous topic we discussed colonial exploitation of the Indian economy under the British rule and features of Indian economy on the eve of independence. And today I will continue the same chapter and the topic is agriculture sector on the eve of independence. Agriculture sector on the eve of independence. तो फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन थी व्हेन on the eve of independence. So let us start. First point is low production and productivity. Low production and productivity. What do you mean by production and what do you mean by productivity? I am telling you the difference between production and productivity. Production means total output and productivity means output per hectare of land. Both of productivity and production were extremely low. दोनों ही क्या थे, productivity भी और production भी, यानी कि total output भी और per hectare output भी जो था वो क्या था, कम था. When agriculture sector on the eve of independence. Okay beta. Second point, high degree of uncertainty. High degree of uncertainty. It means uncertainty, you know the meaning of uncertainty. अब इसमें था क्या, agriculture showed a high degree of uncertainty in the term of farm output. And what is this? It was excessively dependent on rainfall. किस पर डिपेंड रहते थे? रेनफॉल पर डिपेंड रहते थे. बारिश अच्छी होगी तो फसल भी क्या होगी, अच्छी होगी. It means good harvesting will be there when there will be good rainfall. Otherwise production will not, as you can say irrigation was done. तो प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से इरिगेशन जो है वो किया गया है. अब इसके भी कुछ कारण थे. व्हाट वाज द रीज़न? इसका रीज़न क्या था? नो एफर्ट एवर मेड अंडर द ब्रिटिश रूल टू डेवलप परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन, इंक्लूडिंग व्हाट इज परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन लाइक वेल्स एंड कैनल्स. तो अनसर्टेनिटी मीन्स डिपेंड थे किस पर, रेनफॉल पर डिपेंड थे. अब रेनफॉल अच्छी होगी तो क्या होगा, रेनफॉल अच्छी होगी तो इट मीन्स प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी. इट मीन्स गुड रेनफॉल इम्प्लाइड गुड आउटपुट, वाइल पुअर रेनफॉल इम्प्लाइड पुअर आउटपुट. तो कोई एफर्ट जो थे वो नहीं किए गए थे, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा. किसके लिए, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए. और कुछ भी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन जो है वो नहीं बनाए गए थे, लाइक कैनल्स और ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा. थर्ड, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग. इट मीन्स जो फार्मिंग थी वो क्या थी, सबसिस्टेंस थी, सिर्फ अपने लिए ही की जाती थी. डोमिनेंस मीन्स
control or power. So I will tell you, farming was taken mostly as a mean of subsistence. Subsistence farming is a form of farming in which the crops are produced to be provide for the basic needs of the family. There is little surplus left for sale in the market. It means implying a lack of commercial output. Accordingly, backwards prevailed and poverty dominated. इट मीन्स जो फार्मिंग की जाती थी वो सिर्फ किसके लिए की जाती थी, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो की जाती थी. इट मीन्स वो अपनी वीट, राइस, ये सब चीज़ें जो है वो अपने ही यूज़ के लिए जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे. तो दैट इज़ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स जो प्रोडक्शन अपनी निर्वाह के लिए की जाती है, अपना गुजारा करने के लिए की जाती है, दैट इज़ नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. नेक्स्ट पॉइंट, gulf between owner of the soil and tiller of the soil. Gulf between owner of the soil and tiller of the soil. Tiller of the soil जो ज़मीन पर काम करते थे, and owner of the soil that was ज़मींदार, जो उसके क्या थे, नॉमिनल हेड थे, जो टेलर ऑफ द सॉइल से क्या करते थे, कलेक्शन करके, रेवेन्यू कलेक्ट करके और सम ऑफ अमाउंट जो है फिक्स अमाउंट किसको देते थे, गवर्नमेंट को देते थे. तो उनके बीच में बहुत क्या था, गल्फ. इट मीन्स गैप, यू कैन से. तो व्हाट वाज द रीज़न, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न यही था कि जो टेलर ऑफ द सॉइल थे उन्हें बुरे तरीके से क्या किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था. उनको इट मीन्स कि अपनी सर्वाइवल्स भी उनकी बेचारों की पूरी नहीं हो पाती थी. उन्हें टैक्स देना ही देना है. उन्हें लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंडर जो है वो रेवेन्यू देनी ही देनी है, वो टैक्स जो है वो देना ही देना है, चाहे उनकी प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, और चाहे प्रोडक्शन जितना टैक्स पे करना है उससे कम भी क्यों ना हो. तो आई एम टेलिंग यू, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, टेलर ऑफ द सॉइल कन्फ्रंटेड एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड एक्सेप्टेड इंडेप्टनेस एज देयर वे ऑफ लाइफ. द ऑनर ऑफ द सॉइल इंडल्ज इन कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन. द टेलर ऑफ द सॉइल viewed agriculture merely a source of subsistence, and the owner of the soil viewed it hereditary source of income without investment. तो जो टेलर ऑफ द सॉइल थे वो तो बुरे तरीके से एक्सप्लॉइटेड थे. उनको तो अपनी सब्सिस्टेंस के लिए भी जो है वो कुछ नहीं मिल पाता था. बट जो ऑनर ऑफ द सॉइल थे उनका ये वर्क जो था वो हेरिडिटरी हो चुका था और विदाउट इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी इसके अंदर. स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. जो लैंड होल्डिंग्स थे वो क्या थे, छोटे छोटे थे. और फ्रेगमेंटेड मीन्स some pieces are land of pieces are there and some land of pieces are here. Holdings. It means जो land holdings थे वो क्या थे, छोटे छोटे थे. और fragmented means here and there. Land holdings were small as well as fragmented. Fragmented holding means a piece here and a piece there. It means most land holdings were uneconomic, yielding low output at a high cost. Next is land revenue system. Land revenue system. This is also known as land tenure system. I told you so many times about this land revenue system, triangular system of zamindari system, you can say. So see this thing. The British government in India introduced a unique system of land revenue. It set up a triangular relationship between among the government, owner of the soil and teller of the soil. This was popularly known as zamindari system. इसे क्या कहा जाता था, zamindari system. किसका, land revenue का. तो जो teller of the soil होते थे वो क्या करते थे, उस पर काम करते थे piece of land पर, और फिर टैक्स पे करते थे किसे, ज़मींदारों को.
और जो ज़मींदार थे वो नॉमिनल हेड हुआ करते थे। दे कलेक्ट द रेवेन्यू एंड पे टू द गवर्नमेंट। वो किसको पे करते थे? गवर्नमेंट को पे करते थे। वो गवर्नमेंट जो उस समय एक्साइज में थी, दैट वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड commercialization of agriculture. It means, I will tell you about forced commercialization of agriculture. It means commercialization of agriculture refers to the shift of cultivation for self consumption to cultivation for the market. पहले जो एग्रीकल्चर की जाती थी वो सिर्फ अपने ही लिए की जाती थी, अब उसे क्या किया गया? शिफ्ट कर दिया गया, सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट। अब इसमें क्या किया गया? इसमें कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप मीन्स जिन्हें कैश में जो है वो जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है। इट मीन्स मार्केट में क्या करना? सेल करना। जिन रॉ मटेरियल की ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी, उन्होंने क्या किया? वो रॉ मटेरियल यहाँ से जो है वो क्या करते थे? परचेज़ करते थे। और जो हमारे फार्मर्स हैं उन बेचारों के पास कोई और काम नहीं था, इंडियन पीपल्स के पास और वर्क जो है वो नहीं था, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो फेमस था, जिससे वो क्या करते थे? अर्न करते थे। और भी कई चीज़ें थी जो हमारी फेमस थी, सिल्क हो गया, ठीक है ना। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने हमारी मार्केट को तो क्या कर दिया? बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। जो हैंडीक्राफ्ट था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, और जो रॉ मटेरियल था उसे टैक्स फ्री कर दिया, और जो ब्रिटिशर्स की इम्पोर्टेड गुड्स आती थी उन्हें टैक्स फ्री कर दिया। इट मीन्स उन्होंने इंडिया में अपनी मार्केट जो है वो बना ली। और उन्होंने और क्या किया? Mention need to be made of cash crops like cotton, jute, sugarcane, which had a high demand in the market, were increasingly cultivated. These are the cash crops. और वो क्या करते थे? हमारे फार्मर्स को इंडिगो की खेती करने के लिए कहते थे। इंडिगो मीन्स नील, ठीक है। जो नील है वहाँ पर डाइंग और ब्लीचिंग के जो है वो काम आता था, फिनिश गुड्स बनाने के लिए। तो व्हाट हैपन, क्या हुआ? उन्होंने इंडिया की फार्मिंग को सबसिस्टेंस फार्मिंग से शिफ्ट कर दिया। किस में शिफ्ट कर दिया? कल्टीवेशन फॉर द मार्केट। अब कैश क्रॉप्स उगाई जाने लगी, और वो जो कैश क्रॉप्स थी सच एज अ कॉटन, जूट, विच हैड अ हाई डिमांड इन द मार्केट, वर इंक्रीजिंगली कल्टीवेटेड। उन्हें कल्टीवेट किया जाता था। फार्मर्स वॉज फोर्स्ड, फार्मर को फोर्स किया गया क्या उगाने के लिए? इंडिगो उगाने के लिए। वो जो इंडिगो था वो काम आता था किसके? डाइंग और ब्लीचिंग के काम आता था। अब इंडिगो फार्मर्स ने ज़रूर उगाया, बट इंडिगो की प्रोडक्शन करने के बाद उस लैंड पर आप और कोई प्रोडक्शन जो है वो नहीं कर सकते हो। तो ये भी हमारी कंट्री की लैंड को इंडिगो के लिए यूज़ करने का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। बट जो हमारे फार्मर्स थे उन्हें इंडिगो उगाने के लिए एडवांस पेमेंट जो है वो दे दी जाती थी, और दूसरा कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें अच्छा अमाउंट जो है वो मिलता था, और वो मार्केट में ब्रिटिशर्स जो है वो अच्छे रेट पर जो है वो उनसे क्या करते थे? खरीदते थे। तो दिस वॉज द टॉपिक एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक I am telling you industrial sector on the eve of independence. What is the topic? Industrial. अभी तक हमने किया कि एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी। Now I will continue and we shall do the topic industrial sector on the eve of independence. It means हम बात करेंगे किसकी? इंडस्ट्री की। तो फर्स्ट इज सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्री को क्या करना? हटाना। ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम से क्या किया? उन्होंने
इंडिया की इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, यानी कि धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। तो 2 folds वर देयर। फर्स्ट, डीके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड सेकेंड, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ओइंग टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होने की वजह से क्या रहा, ब्लीक ग्रोथ रही, किसकी, मॉडर्न इंडस्ट्री की। ओके बेटा, नाउ फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। अब ये क्या थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? डिस्क्रिमिनेशन, इट मीन्स different at different level, that is known as discrimination. So first is the British found India as the best source of raw material as well as the best market for their industrial product. First policy was tariff free export of raw material from India, यानी कि इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट होगा, किसको, ब्रिटिश को, वो क्या होगा, टैरिफ फ्री होगा। Second, tariff-free import of British industrial product into India. But at the same time, heavy duty were placed on the export of Indian handicraft product, which reduced their competitiveness in the international market. तो 3 points are there. First, जो भी यहाँ से क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा रॉ मटेरियल, वो क्या होगा, टैरिफ फ्री। सेकेंड, जो भी ब्रिटिशर्स की जो गुड्स हैं, फिनिश गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट की जाएंगी, तो वो भी क्या होंगी, टैरिफ फ्री। थर्ड, जो यहाँ से हैंडीक्राफ्ट भेजा जाएगा उसके ऊपर टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोज किया जाएगा। डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। तो आई थिंक इसके बारे में आपको पता होगा। डिसअपियरेंस मीन्स अपीयर ना होना, मतलब ख़त्म होते जाना। तो डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, इट मीन्स प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर से पहले राजा, नवाब, प्रिंस, एम्परर रूल डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। दे यूज टू पेट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट बिकॉज ऑफ which the Indian handicraft industry had acquired international reputation। जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट की रेप्यूटेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा थी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इम्प्लाइड द एंड ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। जैसे ही क्या हुआ, ब्रिटिश रूल बिगिन हुआ, स्टार्ट हुआ, तो जो प्रिंसली कोर्ट्स थे वो क्या हो गए, एंड हो गए। कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, competition from machine made products। अब जो कंपटीशन था वो किसके साथ था, मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ। और इंडिया में जो बनती थी वो कौन सी थी, हैंडमेड प्रोडक्ट। अब जो ब्रिटिश कंट्री से आती थी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आती थी, तो वो मशीन से बनी हुई होती थी और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनती थी। बट इंडियंस क्या करते थे, उसे हाथ से बनाते थे और उसकी कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा आती थी। तो जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनका कंपटीशन किसके साथ हुआ, ब्रिटिशर्स गुड्स के साथ हुआ। तो इट मीन्स जो हमारी कंट्री का प्रोडक्ट था वो उनके कंपैरिजन में महंगा भी था और बनाने में भी काफ़ी टाइम जो है वो लगता था। नेक्स्ट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न of demand. What is the new pattern of demand? New pattern of demand means नया नया आना, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स वो नई बना रहे थे वो क्या करते थे, सेल होने के लिए हमारी कंट्री में जो है वो सेल करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले क्या हुआ, राउंड नेक वाली टी शर्ट बननी शुरू हुई। इंडिया वालों ने क्या किया, वो बनानी शुरू की, लेकिन वो हाथ से बनाते थे, मशीनें तो थी नहीं। इतने में क्या हुआ कि पैटर्न चेंज हो गया।
ब्रिटिशर्स ने क्या किया, न्यू टी शर्ट्स क्या कर दी, बना दी, वी शेप की बना दी या कोई और पैटर्न बना दिया। तो इसकी वजह से भी जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं क्या करती थी, लैक करती थी। Owing to the impact of British culture, a new class emerged in India which was keen to adopt the Western lifestyle. This changed the pattern of demand against the Indian product in favor of British product. In the process, Indian industry started losing domestic market and ultimately perished. It means क्या हुआ, जो वेस्टर्न गुड्स थी, जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल था, लोगों ने उसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड यानी कि नए नए गुड्स जो है वो मार्केट में आने लगी, जिससे इंडिया में बनी हुई जो डोमेस्टिक गुड्स थी उन्होंने अपना क्या किया, अपनी मार्केट जो थी वो क्या कर दी, खोनी शुरू कर दी। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ तो ये जो है वो बेनिफिशियल था, ठीक है ना। ये क्या था, बेनिफिशियल था किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। बेनिफिशियल तो हमारे लिए भी है, बट दैट टाइम इसका बेनिफिट उनको ज़्यादा था। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, साइज ऑफ द मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स intended to expand while it started shrinking for the high cost Indian product. This quickened the process of decay of the Indian handicraft. It means जो रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ बेनिफिशियल था नो डाउट, बट जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो अपने बेनिफिट के लिए ज़्यादा जो है वो इसे काम में लाया। तो इट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया हमारे लिए नेगेटिव था, वो हमारे लिए पॉजिटिव भी कहीं ना कहीं जो है वो था। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। देखिए इंडिया जो था वो क्या था, इंडिया वॉज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया कभी वेल नोन एक्सपोर्टर हुआ करता था किसका, फिनिश गुड्स का। वो गुड्स कौन कौन सी थी, एज अ फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आयरी वर्क एंड प्रीशियस स्टोन। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या थी, फिनिश गुड्स थी, हमारी कंट्री से क्या हुआ करती थी, एक्सपोर्ट हुआ करती थी, जिससे इंडिया जो है वो काफ़ी मनी अर्न करता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्हें ये लगा कि ये काम जो है वो इनका क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे ये अर्निंग तो कर ही रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। नाउ स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंडिया की क्या सिचुएशन थी, आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ, सॉरी बेटा नेट एक्सपोर्टर है यहाँ पर, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। नेट एक्सपोर्टर of primary products and importer of finished products। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया को क्या बना दिया, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बना दिया और इंपोर्टर किसका बना दिया, फिनिश प्रोडक्ट्स का। इट मीन्स रॉ मटेरियल यहाँ से जाएगा, वो फिनिश गुड्स बनेंगी कहाँ, ब्रिटेन में, और जब यहाँ वापस आएंगी
तो वो फिनिश गुड्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो इट मीन्स सपोज़ उन्होंने क्या किया, सपोज़ इंडिया से वुड जा रही है 10,000 की, अब रॉ मटेरियल यहाँ से टैक्स फ्री था, टैक्स तो देना ही नहीं पड़ा। अब वहाँ से फर्नीचर बनकर आया ब्रिटेन से, अब ब्रिटेन से क्या हुआ, फर्नीचर बनकर आया, फर्नीचर बनकर आया तो अब व्हाट विल, यहाँ पर आकर बिकेगा, किस रेट में बिकेगा, जिस रेट में आया है 10,000 का खरीदा था, इट मीन्स 1 लाख का बनकर आया है, तो कितने में बिकेगा, इन 1 लाख, टैक्स फ्री था, ठीक है ना। तो कहने की बात है वही कि इंडिया को उन्होंने एक सोर्स बना लिया किसका, रॉ मटेरियल का। अब जो इंडिया रहा तो इट मीन्स उसको तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। यहाँ से 10,000 की चीज़ गई, वहाँ से 1 लाख की बनकर आई, और यहाँ पर जो पीपल्स हैं वो कितने की परचेज़ करेंगे, 1 लाख की परचेज़ करेंगे। तो दैट वाज नॉट बेनिफिट फॉर इंडिया, ये बेनिफिट था सिर्फ किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। तो यू विल सी उन्होंने इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना दिया किसका, प्राइमरी प्रोडक्ट का, और इंपोर्टर बना दिया किसका, फिनिश गुड्स का। तो सी owing to colonial exploitation of the Indian economy, India became net exporter of raw material and primary products such like raw silk, cotton, wool, jute, indigo, sugar. On the other hand, it became net importer of finished goods produced by the British industry. Second, monopoly control of India's foreign trade. Monopoly control of India foreign trade. Monopoly means सिंगल कंट्रोल, यानी कि अपना ही कंट्रोल उन्होंने बना लिया किस पर, इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर। उन्होंने इंडिया के फॉरेन ट्रेड को क्या किया, कंट्रोल किया, मोनोपोली पावर। तो मोनोपोली मीन्स सिंगल कंट्रोल, ये आपने माइक्रो में पढ़ा है। मोनोपोली ऑफ द कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, तो जो 50% से भी ज़्यादा ट्रेड जो है वो इंडिया का, वो किसके साथ होगा, ग्रेट ब्रिटेन के साथ होगा। और बाकी जो बचा हुआ ट्रेड है वो थोड़ा बहुत किसके साथ कर सकते हैं, चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ। दूसरा 1869 में स्यूज़ कैनाल ओपन हुआ, जिसका डायरेक्ट रास्ता जो है वो कहाँ से जाता था, इंडिया से ब्रिटेन तक जाता था। बिकॉज द कैनल सर्व द डायरेक्ट रूट for the ship operating between India and Britain, avoiding अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो इसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो नहीं आता था बीच में, डायरेक्ट रास्ता था। तो इससे भी उनका ट्रेड जो है वो क्या हो गया, काफ़ी बेटर हो गया। While export of primary product from India supplied input to the British industry, import of finished goods from Britain provided ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। इट मीन्स उन्होंने इंडिया के फॉरेन ट्रेड को भी क्या किया, अपने हाथ में रखा। जैसे वो चाहें यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे वो चाहें यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, और जैसे वो चाहेंगे इंडिया की गुड्स को दूसरी कंट्री को देने देंगे या नहीं देने देंगे। नेक्स्ट इज सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। surplus trade but only benefit to Britishers, benefit to Britishers। अब इसका मतलब क्या है, जो भी सरप्लस ट्रेड था उसका बेनिफिट सिर्फ किसको था, ब्रिटिशर्स को था। इट मीन्स जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता था वो उससे क्या करते थे, वो उसे कभी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं करते थे, वो उसे या तो क्या करते थे, एक्सपेंसेस ऑफ वार फॉर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस टू द ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इट कंपाउंड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में कभी नहीं सोचा। जो उनकी लड़ाइयों में उनका लॉस हो जाता था वो इसकी भरपाई जो है वो किससे करते थे, सरप्लस ट्रेड से। और सेकंड,
उन्होंने क्या किया, अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स के लिए इस पैसे से बड़ी बड़ी क्या बनाई, बिल्डिंग्स बनाई। इट मीन्स उन्होंने कभी भी इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं सोचा। तो दैट वाज द टॉपिक, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, एंड आई टोल्ड यू द स्टेट ऑफ व्हाट, द स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस इज इंडिया की क्या सिचुएशन थी, किसकी, फॉरेन ट्रेड की, कब, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ I hope you can understand this topic by this video lecture easily. If you are facing any problem, can take your problem on WhatsApp. Thank you beta, thank you so much.